from the Viva point of view and general concept. So this is not important from your SCQ point of view. So adverse drugs, there's a difference between adverse drug reaction and side effects. Remember, there's a difference between, आपकी assignment भी आई थी मुझे पता उसमें भी था, adverse drug reactions और side effect में different होता है. So adverse drug reaction, as the name shows, any response to a drug which is noxious and unintended. Any response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in men for prophylaxis, diagnosis or therapy of a disease or for the modification or of physiological function. So adverse drug reaction है कि जब normal dose जो हम prophylaxis या diagnosis या treatment के लिए यूज करते हैं उस पे जो किसी ह्यूमन सब्जेक्ट के अंदर जो इफेक्ट आ रहा है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है. I repeat again, any response to a drug which is noxious and unintended and which occur at doses normally used in men for prophylaxis, diagnosis, therapy of the disease, or the for modification of physiological function. So this is very important. Adverse drug reaction is seen with the normal doses. Adverse drug reaction is seen with the normal doses. So undesired effect of a drug occurring under normal condition of use. So this is the definition, short definition, that undesired effects of a drug occurring during normal condition of use. जो normal condition है उसके अंदर यूज करने से जो उसके आ रहे हैं adverse drug reactions हैं. So adverse drug reactions की two types होती हैं, type A and type B. The type A is also called as predictable or augmented drug reaction, और type B is called as unpredictable reactions. अब MCQ में आता है which of the following is unpredictable type reactions. So type B को bizarre भी कहते हैं. इसमें कौन सा आता है अभी आपको बताता हूँ. Predictable जो होते हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस वजह से होंगे. सो इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. किसी कंपनी ने ऐसी ड्रग बनाई जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सो उससे एडवर्स एक्शन होंगे. उसको हम कहेंगे प्रेडिक्टेबल टाइप ए. ब्लीडिंग विद एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट जो होती है थ्रोम्बोसिस के लिए यूज होती है. अब वो इतनी ज़्यादा एंटीकोगुलेशन करा रही है कि नॉर्मल ब्लीडिंग, जो नॉर्मल थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म जो ब्लीडिंग को रोकता है, वो भी नहीं हो पा रहा. Hypoglycemic coma with insulin. Insulin is used to decrease the blood glucose level. अब इंसुलिन बंदे ने लिया उसकी और ही ज्यादा कम हो गया. सो क्यों? क्योंकि उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी. Another reaction that is predictable, withdrawal symptoms or rebound responses after discontinuation of treatment. So this is very important MCQ. Clonidine withdrawal causes hypertensive crisis. So MCQ में आता था which of the following causes hypertensive crisis on withdrawal. So उसमें क्लोनिडीन ऑप्शन होता है. पूरी फार्माकोलॉजी में यही आपको एक मिलेगी जिसकी हाइपरटेंशन मेजर है ऑन विड्रॉल. सो विड्रॉल सिम्टम्स. और एक और चीज जिसमें आती है एडवर्स रिएक्शंस अनरिलेटेड टू द मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने एक ड्रग खाई है अमीनोग्लाइकोसाइड जो हमारे पास यूज होती है एंटीबैक्टीरियल, लेकिन इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है. ये आप बात याद रखें, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी होती है, मतलब ईयर में भी इफेक्ट करती है. अब बंदा खा इसको एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रहा है और जाके किडनी से इफेक्ट हो रही है, तो दिस विल बी अ प्रेडिक्टेबल टाइप ए एडवर्स एक्शन. सो ये तीन हमारे पास बेसिकली आते हैं टाइप ए के अंदर. ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एमसीक्यूज में आ सकते हैं. withdrawal symptoms or rebound responses after discontinuation of treatment. Third is adverse reactions unrelated to the main pharmacological activity. और unpredictable में क्या आते हैं? टाइप बी में ड्रग एलर्जी, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 4 और टाइप 1 रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी. रिमेंबर टाइप 1 और टाइप 4. idiosyncrasy, as I have already told you what is idiosyncrasy, and genetically determined effect. So we cannot predict these effects. These three comes under the unpredictable. So MCQ में आता है which of the following is unpredictable, तो उसमें अक्सर ऑप्शन idiosyncrasy का होता है, बाकी पिछले वाले ऑप्शंस होते हैं कुछ. So causes of adverse drug reactions, you know that inappropriate use of drugs. A person is taking drugs without any medical reason. Inadequately monitored use. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब 500 मिलीग्राम किया, वो 1000 मिलीग्राम खाई जा रहा है. ड्रग इंट्रैक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ मेडिकेशन, inadequately evaluated and irrational foolish drugs. The drugs that are not formulated in the good way, और जो फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उस ड्रग को सही नहीं बना रही, उसके मटेरियल नहीं ठीक, तो इस वजह से एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं. So factors that predispose to adverse drug reaction: age of the patient. Some drugs are contraindicated in children, some drugs are contraindicated in older patient. So genetic factors, pregnancy very important. Pregnancy में कुछ drugs नहीं देते, lactation में नहीं देते, underlying diseases में. So these are the factors related to patient that predispose the patient to adverse drug reaction.
सो ड्रग रिलेटेड केमिकल नेचर, आज मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजिकल कंपनी ऐसी है जो ड्रग अच्छी नहीं बना रही. नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स, फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल, डोज, एज ऑफ द ड्रग. अब ड्रग एक्सपायर हुई है, बंदे ने खा लिया, नॉर्मल डोज है, सब कुछ है, एक्सपायर्ड ड्रग खा लिया, तो दैट्स व्हाई उसके एडवर्स रिएक्शन है. तो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक ड्रग थी वो ओरल लेनी थी, आईवी लेनी थी, वो ओरल खा रही है, तो ओरली नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया उसको ज्यादा होगा. सो ये एडवर्स रिएक्शन. सो कंकरेंट पैरेलल थेरेपी, एक बंदा है वो कोई और ड्रग खा रहा है और साथ में कोई और दो ड्रग्स खा रहा है, सो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन है. सो दिस इज द फैक्टर रिलेटेड टू द ड्रग दैट प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. So several possible relation between the toxic and therapeutic effect of a drug. तीन तीन तरीके हो सकते हैं. रिमेंबर, ये हो सकता है कि जिस रिसेप्टर पे ड्रग जाके अफेक्ट कर रही है, इसको याद करें और से समझें कि जिस रिसेप्टर पे जाके ड्रग एक्ट कर रही है, अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है, उसी रिसेप्टर पे जाके वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है. सो बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट मीडिएटेड बाय सेम रिसेप्टर effector mechanism. You can see drug binds to the receptor. The drug receptor complex shows the response. Both are toxic and beneficial. सेकेंड टाइप, इसकी एग्जांपल क्या है, ब्लीडिंग कॉज बाय एंटीकोगुलेंट. अभी मैंने बताया कि एंटीकोगुलेशन के लिए, एंटी थ्रोम्बोसिस के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स. अब वो जाके उसी रिसेप्टर पे जाके ब्लीडिंग करनी शुरू हो गई, इतनी उसने थ्रोम्बोसिस को रोक दिया कि नॉर्मल थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म भी रुक गया और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा बाय द इंसुलिन. So the second type is beneficial and toxic effect mediated by identical receptors but in different tissue or by different effector pathway. इसका मतलब ये है कि सेम रिसेप्टर्स हैं लेकिन डिफरेंट जो साइट्स पे प्रेजेंट है. यू कैन सी ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर टू फॉर्म द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. दिस विल शो रिस्पॉन्स. अब सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है और एक रिसेप्टर बाइंड करके वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है और एक रिसेप्टर बाइंड करके वो अपने बेनिफिशियल ड्रग दे रही है. फॉर एग्जांपल ड्रग ए इज यूज फॉर लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के लिए ड्रग ए लोअर कर रही है, वो जाके बाइंड करती है रिसेप्टर्स अल्फा से, लेट्स सपोज. अब वही रिसेप्टर्स उसके किडनी पे प्रेजेंट है और वही रिसेप्टर्स उसके हाइपोथैलेमस में भी प्रेजेंट है. अब वो ड्रग जाके अल्फा रिसेप्टर पे ब्रेन में थैलेमस हाइपोथैलेमस में बाइंड करके टेम्परेचर को कम करेगी, लेकिन वही ड्रग अल्फा रिसेप्टर्स ऑन द किडनी पे जाके किडनी को अफेक्ट करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट देगी. सो द सेकंड इज दैट रिसेप्टर्स आर सेम बट इफेक्ट्स आर mediated by binding to the receptor on different tissues. That you can see the example, the brilliant example is digoxin. You will study this CVS. This is very good drug, very important drug, and very conceptual drug. The digoxin, अब digoxin जो होती है ना, ये बाइंड करती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे बाइंड करती है. अब ये हार्ट फेलियर की यूज होती है. अब किडनी पे तो देखेंगे इसी रिसेप्टर पे जाके कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है, हार्ट फेलियर से बचा रही है. जीआईटी पे रिसेप्टर पे बाइंड करके आगे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कर रही है. जो हमारे पास आईज हैं उस पे जाके इसी रिसेप्टर बाइंड करके विजन को अफेक्ट कर रही है. ब्लरिंग ऑफ विजन, हेलोज होते हैं इसके अंदर, लाइट के इर्द गिर्द ना, ये इसकी टॉक्सिसिटी का वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम है, आदत होता है एमसीक्यू में. लाइट के इर्द गिर्द हमें बल्ब की जो लाइट होती है ना घर में, जो व्हाइट बल्ब होता है, ऐसे लगता है उसके इर्द गिर्द रेनबो बन रहा है. इसकी टॉक्सिसिटी, हेलोज अराउंड द राइट नजर आते हैं. तो देखें सेम रिसेप्टर है डिफरेंट साइड्स पे. थर्ड के हमारे पास, द थर्ड इज बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट मेडिएटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. अब है कि एक ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर 1 एंड रिसेप्टर 2. अब डिफरेंट रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल ड्रग ए बाइंड्स टू अल्फा रिसेप्टर on some tissue, for example brain, and causing lowering of body temperature, and the drug binds to beta receptor present on the kidney and showing the toxic effect. अब ये है कि ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड कर रही है और सेम साइट पे भी हो सकते हैं रिसेप्टर, सेम टिश्यू में भी हो सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज में भी हो सकते हैं. सो थ्री कंसेप्ट, थ्री चीजें हैं इसके पास कि एक इज सिलेक्टिव, कि ड्रग जिस रिसेप्टर पे अपने बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है उस पे अपने टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है. सेकंड क्या है कि ड्रग जिस रिसेप्टर पे अपने बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है उसी पे अपने टॉक्सिक दे रही है, लेकिन रिसेप्टर्स डिफरेंट टिश्यूज में. थर्ड ये है कि रिसेप्टर्स ही डिफरेंट है, एक रिसेप्टर पे वो बाइंड करके टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, एक रिसेप्टर पे बाइंड करके वो बेनिफिशियल दे रही है. दिस इज नॉन सेलेक्टिव. So what is the difference between side effects and adverse effect? Very important, very important. So I will be telling you the side effects are physiological effects, and the adverse effects are non-physiological effects. The side effects are not related to desired drug effect.
साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि हमने ड्रग यूज की किसी और कंडीशन के लिए, उसके साथ जो कोई और इफेक्ट्स आ रहे हैं आर नॉट रिलेटेड टू द डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट, दे आर अनयूजुअल थेरेपी, दे आर सीन विद यूजुअल थेरेप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग। जो नॉर्मल डोज यूज करते हैं उसके साथ साइड इफेक्ट्स आते हैं, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, दे कैन बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। अब देखिए एक ड्रग है, वो बॉडी टेम्परेचर कम कर रही है, उसके साथ साथ वो पेन किलर भी है, तो ये उसका साइड इफेक्ट है कि हमने उसको बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए यूज की, लेकिन उसके साथ साथ वो पेन किलर भी है, लेकिन ये साइड इफेक्ट डिजायर्ड है। तो साइड इफेक्ट कैन बी डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। सो यहाँ पे एमसीक्यूज में सारे मार्क खाते हैं कि साइड इफेक्ट्स, उनको लगता है कि साइड इफेक्ट हमेशा बुरे ही होंगे। साइड इफेक्ट कैन बी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। सो एडवर्स इफेक्ट्स आर ऑलवेज अनडिजायर्ड। जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं या अनडिजायर्ड होते हैं, or more severe than side effects. These adverse reactions, yeah, adverse effects are more severe than side effects. So they are always undesirable. They are also seen at normal doses. They can be mild to severe. So the difference between side effect and adverse effect. So common side effects, just for your MCQs, you will study this in detail. CNS के common side effects होते हैं, CNS पे जो drugs करती हैं, stimulation या depressant. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में जो अफेक्ट करती हैं ड्रग्स, उसमें एस्पिरिन, एनसेड्स, एंटीबायोटिक्स जो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया करते हैं। हेमाटोलॉजिकल जो ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एसिटामिनोफेन जो मैंने आपको बताया, पैनाडोल है, बताया था मैंने किस तरह हेपेटोटॉक्सिक होती है, ये इसका सीरियस जो है ना एडवर्स इफेक्ट है। आइसोनियाजिड इज आल्सो हेपेटोटॉक्सिक, एंटी माइक्रोबियल्स नेफ्रोटॉक्सिक या अमीनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक, और hypersensitivity can be seen by any drug, but they are more prominent with penicillin. Drug fever, beta blockers, atropine. Idiosyncrasy can be seen with any drug. Opioids, drug dependence, opioids and hypnotics, as I've already told you, that are acting on the CNS. Teratogenicity, analgesics, antihistamine. You know that thalidomide is teratogenic, causes limb defects. सो हाउ टू प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज बनाएं हम। पहले तो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्वालिटी ड्रग्स। आपने देखा होगा इस किसी कोई अगर इधर रावलपिंडी में रहता है तो उसको पता होगा, इधर चकलाला में एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और एंटी जो है ड्रग डिपार्टमेंट है, जिसका सिर्फ वो बहुत बड़ा है, तकरीबन 4-5 कनाल पे उनकी बिल्डिंग है। वो सिर्फ इसलिए है कि वो मॉनिटर करता है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है सेफ है, और क्वालिटी ऑफ ड्रग को वो मैन्युफैक्चर करता है, मॉनिटर करता है पूरे पाकिस्तान में। और फिर आगे देखने की रैशनल यूज ऑफ ड्रग। अब बंदा पैनाडोल बुखार कम करने के लिए ही खा रहा है, या फिर उस पैनाडोल को किसी और रीजन के लिए यूज कर रहा है। सो रैशनल यूज ऑफ ड्रग, अगर वो उसको उस कंडीशन में यूज करेगा तभी बेनिफिशियल होगी और एडवर्स रिएक्शन नहीं आएंगे। और एक होता है पी ड्रग कंसेप्ट, पैरा ड्रग कंसेप्ट कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी। अब ये नहीं है कि दो बंदे मेरे पास आ रहे हैं, दोनों को बुखार है, दोनों को मैं जो है पैनाडोल दे दूं। अब मुझे देखना पड़ेगा उसको बुखार के साथ साथ और क्या क्या है, और दूसरे को देखना पड़ेगा क्या क्या है, तो मैं उसकी डोज, उसकी ड्रग उसके मुताबिक एडजस्ट करूंगा। अब एक बंदा आ रहा है, उसको बुखार के साथ साथ बॉडी पेन भी, मसल स्पैल्स में, तो उसके लिए मेरे लिए जो ड्रग ज्यादा बेहतर पैनाडोल से होगी वो एरिनेक फोर्ट होगी, तो मैं एक को एरिनेक फोर्ट दूंगा, एक को पैनाडोल। सो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी एंड कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन दें डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी कि आपने किस तरह ड्रग को यूज करना है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाएं। रोल ऑफ रेगुलेटर्स और डिफरेंट ड्रग्स रेगुलेटर्स